ट्वेल्थ इंग्लिश मीडियम। सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, फंक्शन एफ इज अ रूल और मैपिंग which associate each element of set A to a unique element in set B. Each element of set A to a unique element in set B. A function f from A to B represent f from A to B. X belongs to A, fx equal to y, and that y belongs to B. The element of set A is called domain of f, and the element of set B is called codomain of f. The set of all f images obtained in set B corresponding to each element belongs to set A are called range of f. Types of function: 1 function, f from capital X to capital Y, is defined to 1 or inject function if the images of distinct element of X under f are distinct. Images of distinct element of X under f are distinct. That is, for every x1 x2 belongs to capital X, fx1 equal to fx2 implies x1 equal to x2, or x1 not equal to x2 then fx1 not equal to fx2, then f is called 1 function. If f is not 1 then it is called many one function. Many one function की definition ऐसी कुछ है: from capital X to Y, x1 x2 belongs to x, x1 different from x2 implies fx1 equal to fx2, then f is called many one function. On to function, that is surjective function. On to function की definition ऐसी है: from capital X to capital Y is said to be on to function or surjective if every element of Y is the image of the sum element of X under F, that is every Y belongs to Y. यहाँ small y होना चाहिए. Small y belongs to capital Y. There exists element small x in X. यहाँ पे small y रख देना. Y, small y belongs to capital Y. Small y belongs to capital Y. There exists an element x in capital X such that fx equal to y. Or f from capital X to capital Y is onto if and only if range of f equal to y. Range अगर कोडोमेन जितना है तो भी उसको onto function बोलते हैं. If f is 1 and onto, then it is called 1 and onto function. First question देखेंगे. So that the function f from R to R defined by fx equal to 1 upon x is 1 and onto, where R is the set of all non-zero real numbers. Is the result true if the domain R is represented by n with codomain being same as R? F from R to R fx equal to 1 upon x. x1 x2 belongs to R, fx1 equal to fx2. This implies fx1 होगा अपना 1 upon x1, fx2 होगा 1 upon x2. Simplify किया, this implies x1 equal to x2. Therefore the function f is 1. Okay, on to prove करेंगे. The function f is 1. Now on to prove करने के लिए y belongs to, ये कोडोमेन में से लिया, y belongs to R and y equal to fx, that is y equal to 1 upon x. This implies x equal to 1 upon y. अभी x की वैल्यू यहाँ पे रख देना है. fx इक्वल टू f of 1 upon y, that is 1 upon f of 1 upon y, मतलब f of 1 upon y यहाँ पे रखेंगे तो 1 upon 1 upon y, that is y, and therefore f is 1 2. On to प्रूव करने के लिए क्या करना है? y इक्वल टू fx लिख के इसमें से x की वैल्यू फाइंड करके x की वैल्यू इसमें डाल देना है f of x में, और f of x इक्वल टू y प्रूव हो गया, then function is 1 2. If the domain R replaced by n with codomain being with the same as R, the result is not true. That the function fx equal to 1 upon x is not 1 and onto inverse of numbers do not exist in n. क्योंकि ये 1 भी ये फंक्शन ही नहीं होगा क्योंकि f from n to R लिया. ओके, देख लेते हैं. If the domain is R, then replaced by n. डोमेन को n से रिप्लेस करते हैं विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज R. तो रेंज एंड कोडोमेन बोथ आर नॉट इक्वल, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू नहीं होगा. 1 तो होगा ही. इफ fx इक्वल टू 1 अपॉन x, देन इट इज ऑल्सो 1 बट ऑन टू नहीं होगा. 1 क्यों होगा? क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग वैल्यू मिलेगी. इफ टेक x इक्वल टू 1 देन f ऑफ 1 इज 1. इफ यू टेक x इक्वल टू 2 देन f t इक्वल टू 1 अपॉन 2. 3 देन f 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3. हर एलिमेंट के लिए n के हर एलिमेंट के लिए अलग अलग वैल्यू मिल रही है, सो इट इज़ 1 बट नॉट ऑन टू. क्योंकि इसका रेंज फाइंड करेंगे तो रेंज क्या होगा? रेंज होगा 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू, एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन R जितना नहीं है, सो इट इज़ नॉट ऑन टू.
सेकेंड क्वेश्चन, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिविटी मतलब 1 1 है या नहीं है। f from n to n given fx equal to x square, f from n to n fx equal to x square, so fx1 equal to f from n to n fx equal to x square, let x1 x2 belongs to n, fx1 equal to fx2, this implies x1 square equal to x2 square, this implies x1 equal to x2। यहाँ प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि डोमेन n है, सो f इज 1 1 फंक्शन। ओके, 1 2 नहीं होगा, क्योंकि 1 2 क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ। क्योंकि इसके रेंज में 3 कब आएगा, इफ़ वी टेक x इक्वल टू √3 देन 3 आएगा, लेकिन √3 हम नहीं ले सकते क्योंकि n में है नहीं। सो इसकी बात पूछे तो इसका रेंज जो होगा वो क्या होगा मैं बता देता हूँ। रेंज इसका 1 4 9 16 25 ऐसा उसका रेंज होगा। एंड कोडोमेन कितना है n, रेंज एंड कोडोमेन बोथ आर नॉट इक्वल, सो फंक्शन इज नॉट 1 2, ऐसे भी हम बता सकते हैं। इसका रेंज फाइंड करो तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे, टेक n में से एलिमेंट लेते हैं, टेक n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 लिया तो 1 मिला, 2 लिया तो 4 मिला, 3 लिया तो 9 मिला, 4 लिया तो 16, 5 लिया तो 25, मतलब रेंज होगा 1 4 9 16 25 36 ऐसा होगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू एन कोडोमेन जितना नहीं है, सो इट इज़ नॉट 1 2। f from z to z given fx equal to x square, this is 1 1 function। f from z to z fx equal to x square, it is 1 1 function, but नहीं, इट इज़ नॉट 1 1, सॉरी इट इज़ नॉट 1 1, क्योंकि इफ वी टेक 1 देन इट इज़ 1, -1 देन ऑल्सो 1, एफ ऑफ 1 लिया तो 1 हुआ, -1 लिया तो भी 1 हुआ, सो इट इज़ नॉट 1 1 फंक्शन। इट इज़ 1 2 और नॉट, इट इज़ नॉट 1 2, क्योंकि इसका रेंज फाइंड करेंगे तो रेंज क्या होगा मैं बता देता हूँ। 0 लिया तो 0, 1 लिया और -1 लिया, उसका आंसर 1 आएगा, 2 लिया या -2 लिया 4 आएगा आंसर, 3 लिया या -3 लिया 9 आंसर आएगा। मतलब इसका रेंज होगा 0 1 4 9 16 अप टू, विच इज़ नॉट इक्वल टू जेड, कोडोमेन जितना नहीं है, सो इट इज़ नॉट 1 2। ओके, थर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम R to R fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन, क्योंकि हमने 2 एलिमेंट लिए 2n - 2, पहले वाले में तो क्या n था, उसमें तो हम एलिमेंट नेगेटिव पॉजिटिव नहीं ले सकते। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 लिया n -2 लिया, f of 2 then 4, f of -2 then also 4, 2n - 2 both are not equal but their value are इक्वल, सो f इज़ नॉट 1 1 फंक्शन। 1 2 भी नहीं है क्योंकि इसका रेंज फाइंड करेंगे तो r प्लस यूनियन 0 आएगा, इसका रेंज r प्लस यूनियन 0 वो कोडोमेन जितना नहीं है, सो इट इज़ नॉट 1 2 फंक्शन। f फ्रॉम n to n fx इक्वल टू एक्स क्यूब, दिस इज़ 1 1 फंक्शन। वाई 1 1 फंक्शन, क्योंकि इसमें 1 1 क्यों है, तो 1 1 इसीलिए है कि x1 x2 belongs to n, fx1 equal to fx2, x1 cube equal to x2 cube, this implies x1 equal to x2, thus every element of domain of f has unique image, so f is 1 1 function। 1 2 नहीं होगा, क्योंकि 1 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका रेंज फाइंड करेंगे तो 1 फिर 8 फिर 27 125 ऐसा आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू एन, कोडोमेन जितना नहीं है, रेंज कोडोमेन जितना नहीं है। रेंज कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से एलिमेंट लेना है, n में से क्या क्या एलिमेंट लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ये सब। 1 लिया तो 1 क्यूब मतलब 1, 2 लिया तो 2 क्यूब दैट इज 8, 3 लिया तो 27, 4 लिया तो 64, 5 लिया तो 125। ओके, तो इसका रेंज होगा मैं बताता हूँ 1 8 फिर 27 64 125 अप टू, विच इज़ नॉट इक्वल टू n, कोडोमेन जितना नहीं है, सो इट इज़ नॉट 1 2 फंक्शन। Same f from z to z fx equal to x cube, this is 1 1 function। Okay, every element of x1 x2 belongs to z, fx1 equal to fx2 implies x1 cube equal to x2 cube, this implies x1 equal to x2, thus each element of domain f has unique image, so f is 1 1 function। 1 2 नहीं होगा, क्योंकि 1 2 क्यों नहीं होगा कि 0 लिया तो 0 मिला, 1 लिया तो 1 मिला, -1 लिया तो -1 मिला, -2 लिया तो -8 मिला, इसमें -3 नहीं होगा, रेंज में -3 नहीं मिलेगा, रेंज में 5 भी नहीं मिलेगा, सो रेंज एंड कोडोमेन बोथ आर नॉट इक्वल, सो इट इज़ नॉट 1 2 फंक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f from R to R fx equal to given by fx equal to integer part of x is neither 1 1 nor 1 2, this denotes the greatest integer less than or equal to x। इंटीजर पार्ट ऑफ x 1 और 2 के बीच वाले सारे एलिमेंट लिया तो आंसर 1 मिलता है, 2 और 3 के बीच वाले सारे एलिमेंट लिया तो आंसर 2 मिलता है,
मतलब ये हुआ कि 1.5 लिया तो भी 1 मिला, एफ ऑफ 1.8 लिया तो भी 1 मिला। 1.5 का इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होगा 1, 1.8 का भी 1, सो इट इज़ नॉट 1 फंक्शन। 1.9 का भी 1, सो एफ इज़ नॉट 1 फंक्शन। रेंज ऑफ दिस इंटीजर पार्ट ऑफ फंक्शन इज जेड, इसका रेंज होगा जेड विच इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन आर जितना नहीं है, सो इट इज़ नॉट 1 फंक्शन। तो नाइदर 1 एंड नॉर 1। Question number 4. So that the modulus function f from R to R fx modulus x is neither 1 nor 1 modulus part of x. ओके इसका डेफिनेशन दे दिया, लेकिन बिना डेफिनेशन भी मैं समझा सकता हूँ। f of 2 then 2, f of minus 2 then also 2, 2 and minus 2 both are not equal, but f2 and f of minus 2 both are equal, so f is not 1 ओके इसका रेंज फाइंड करेंगे तो r प्लस यूनियन 0 मिलेगा, और इट इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन r जितना नहीं है, सो इट इज़ नॉट 1 फंक्शन। Question number 5. Secant function, sinum function f from R to R given by fx equal to 1 if x greater than 0, 0 then if x equal to 0, minus 1 neither 1 nor 1 2. f of 1 लिया तो भी 1, f of 2 लिया तो भी 1. It is clear that f of 5, f of 8 both are equal at their value is 1, but f and 5 and 8 both are not equal. So and similarly f of minus 2 and f of minus 3 दोनों का वैल्यू -1 है, -2 एंड -3 इक्वल नहीं है, सो f इज़ नॉट 1 फंक्शन। यहाँ पे 1 वैल्यू कब होती है? सारे पॉजिटिव वैल्यू के लिए। 0 कब होती है? 0 के लिए। -1 कब होती है? सारे नेगेटिव वैल्यू के लिए। तो सारे पॉजिटिव वैल्यू के लिए इसका वैल्यू 1 होता है, मतलब इट इज़ नॉट 1 इसका रेंज होगा -1 0 एंड 1 इट इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन r जितना नहीं है। इसका रेंज होगा कर्ली ब्रैकेट -1 0 एंड 1, सो इट नॉट इक्वल टू r, सो f इज़ नॉट 1 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। लेट a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 4 5 6 7 and let f equal to 1 4 2 5 3 6 be a function from a to b so that f is 1 1। a equal to 1 2 3, b equal to 4 5 6 7, 1 का 4 के साथ एसोसिएट होता है, 2 5 के साथ, 3 6 के साथ। सो f1 is 4, f2 is 5, f3 is 6। so f has unique image, each element of set A has unique image in set B, therefore the function from A to B is 1 1, not 1 1 नहीं आएगा, 1 1 आएगा। Question number 7. In each of the following case, state whether the function is 1 1 onto or bijective. Justify your answer. f from R to R defined from fx equal to 3 minus 4x. Linear function जो होता है R से R का linear function is always 1 1 and always onto. Okay. फर्स्ट क्वेश्चन इट इज़ 1 1 एंड 1 2 प्रूव कर देंगे। f from R to R fx equal to 3 minus 4x. R to R linear function is always 1 1. x1 x2 belongs to R, fx1 equal to fx2. This implies 3 minus 4x1, यहाँ रख दिया 3 minus 4x1 equal to 3 minus 4x2, and this implies x1 equal to x2. Therefore the function f is 1 1. ओके 1 2 कैसे प्रूव करेंगे? इसमें fx की जगह पे y रख के इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे। लेट y इक्वल टू fx इक्वल टू 3 minus 4x, सो 4x इक्वल टू 3 माइनस वाई, एक्स इक्वल टू 3 माइनस वाई बाई 4। अभी ये x की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 3 माइनस वाई बाई 4। f के बाद जो होता है एफ एक्स इक्वल टू क्या है? 3 माइनस 4x। तो f ऑफ समथिंग इज 3 माइनस 4 इंटू समथिंग, 4 4 कट, 3 माइनस 3 प्लस वाई, दैट इज y। thus फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r सो दैट f x इक्वल टू y, सो f इज 1 2। इसकी बात करते हैं। दिस इज नॉट 1 1। क्यों 1 1 नहीं होगा मैं बता देता हूँ। इफ़ वी टेक x इक्वल टू 1 then also value 1। if we take f equal to x equal to minus 1, this is also x 1 लिया तो 2 मिलेगा और minus 1 लिया तो भी 2 मिलेगा, so it is not 1 1 function। और यहाँ पे प्रूव कर लिया f2 equal to 5 and f of minus 2 is also 5, so the function is not 1 1। इसका रेंज देखेंगे तो एक या एक से ज़्यादा होता है, रेंज कोडोमेन जितना नहीं है r जितना। ओके कैसे इसका रेंज एक या एक से ज़्यादा होगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0 प्लस 1, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 1, मतलब एफ एक्स की वैल्यू 1 और 1 से ज़्यादा है। सो रेंज ऑफ द फंक्शन इज क्लोज 1 टू ओपन इन्फिनिटी, इट इज़ नॉट इक्वल टू आर, कोडोमेन जितना नहीं है, सो इट इज़ नॉट ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कितना बाकी रहता है? 12 तक क्वेश्चन है। ओके 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ लेट a and b to set so that f from a cross b to b cross a such that f of a b equal to b a is bijective function, so it is 1 1 भी है 1 2 भी है। ओके यहाँ पर ये 1 1 हो सकता है क्योंकि a1 b1 a2 b2 लिया मैंने a क्रॉस b में,
A1 A2 belongs to A and B1 B2 belongs to B. F of A1 B1 equal to F of A2 B2. F of A1 B1 is what? B1 A1. F of A2 B2 is what? B2 A2. B1 equal to B2, A1 equal to A2. So A1 B1 equal to A2 B2. Thus F of A1 B1 equal to F of A2 B2. This implies A1 B1 equal to A2 B2. So F is 1 1. Okay. BA belongs to B cross A. There exists AB belongs to A cross A such that F of AB equal to BA. Thus, each element of BA belongs to B cross A. We find an element AB belongs to A cross B such that F of AB equal to BA. So, F is onto function. ये onto भी है. So, it is surjective. Question number 9. Let F from n cross n to n define Fn equal to n plus 1 by 2 if n is odd, is n by 2 if n is even. State whether the function f is bijective. Justify your answer. Fn equal to n plus 1 by 2 if n is odd, n by 2 if n is even. If we take n equal to 3 then it is 2. If we take n equal to 4 then it is also 2. So it is not 1 1 function. So thus और इसकी रेंज फाइंड करेंगे तो रेंज कोडोमेन जितनी आ जाएगी. सो इट इज़ ऑन टू फंक्शन, नॉट 1 1 बट ऑन टू फंक्शन. सो एफ इज़ नॉट बाइजेक्टिव, एफ इज़ सर्जेक्टिव. ओके, ये बाइजेक्टिव नहीं है क्योंकि इसमें हम रेंज कैसे फाइंड करेंगे. इफ यू टेक n इक्वल टू 1, 1 लिया तो फिर क्या है 1 मिलेगा, 1 प्लस 1 बाई 2. 2 लिया तो क्या आया 1, 3 लिया तो 2 आएगा, 4 लिया तो भी 2 आएगा, 5 लिया तो 3 आया, 6 लिया तो भी 3 आया. मतलब इसका रेंज फाइंड करेंगे तो रेंज कोडोमेन मतलब n जितना हो जाएगा, ये n जितना. सो इट इज़ ऑन टू फंक्शन बट नॉट 1 1. क्वेश्चन नंबर 10. Let a equal to r minus 3, b equal to r minus 1. Consider the function f from a to b defined by fx equal to x minus 2 by x minus 3. F is 1 1 and 1 2. Justify your answer. Yes, f is 1 1 and f is 1 2. क्योंकि यहाँ पे लीनियर बाय लीनियर है. सो इट इज़ 1 1 पक्का. x1 x2 belongs to a. fx1 equal to fx2. x1 minus 2 by x1 minus 3 equal to x2 minus 2 by x2 minus 3. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, सिंप्लीफाई किया. सो x1 equal to x2. दस f is 1 1. ऑन टू के लिए लेट y equal to fx equal to this. इसमें से x की वैल्यू फाइंड की, x की वैल्यू ये आई, x की वैल्यू यहाँ डाल दी. fx equal to f of 3y minus 2 by y minus 1. ओके, f of something is something minus 2 by something minus 3. सिंप्लीफाई किया, y प्रूव कर दिया. देयरफॉर द फंक्शन इज ऑन टू. अब देखेंगे ये कौन सा क्वेश्चन था. ये था, ये कौन सा क्वेश्चन था देख लेते हैं. ये 10. अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11. इन फॉलोइंग क्वेश्चन 11 and 12 select the correct option so that the statement become true. Let f from r to r fx equal to x raised to 4. It is not 1 1 क्योंकि 1 लिया तो भी 1 मिला, -1 लिया तो भी not 1 1. ऑन टू भी नहीं होगा क्योंकि इसका रेंज फाइंड करेंगे तो r प्लस यूनियन 0 होगा. इट इज़ नॉट इक्वल टू r, कोडोमेन जितना नहीं है. सो इट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू. D is the correct answer. Neither 1 1 nor on 2. D is the correct answer. Okay. Question number 12. Let f from r to r fx equal to 3x. Choose the correct answer. ये linear function है, 3x है. Okay. It is 1 1 as well as on 2. F is 1 1 and on 2. F is 1 1 and on 2. A is the correct answer. 3x1 equal to 3x2 x1 equal to f is 1 1. ये प्रूव कर दिया. y इक्वल टू 3x x इक्वल टू y बाई 3 यहाँ पे डाल दिया एंड प्रूव हो गया. f इज़ 1 1 एंड ऑन 2. इसके साथ अपनी एक्सरसाइज 1.2 हमने ख़त्म की. नहीं समझ आता तो क्लास पर टाइम लेके आना है और समझ के जाना है.